media members as well. Please say a few words. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a very good afternoon for us. Uh, Maddock has been built with small town stories, middle class stories. And there was this whole theory going out like that the audience doesn't want to watch films like this. So, films like Hindi Medium, Bala, Luka Chupi would not be as relevant in theaters. So, I'm just personally very, very grateful because we can make films like this thanks to y'all. And a big shout out to all of y'all because you've taken this really beautiful middle class couple, Soumya and couple, and made the audience feel connected to them. And that's why we've done so well. So I thought the best thing is to celebrate the film with you. But who I'd like to speak about today is Lakshman Uttekar. How do I start? So his reference of his stories is life, not films. And I think he's on a hat trick. This is his third hit, which is fantastic. Uh, and he's as simple and more connected to India than most people in Bombay. Uh, and I just feel I want to thank him because this is his third film with us, his third hit film with us. And I just want to tell him that I'm really grateful he's part of our family and he's given this really special film. My entire family, I used to live with 25 people. I saw the film with all of them and it was amazing. It kind of reminds each one of them of moments you've had. And that moments he's built. So his everything you see in his film is somewhere from a window in his life. And he's like one of us in the life he's lived. So thank you very much, Lakshman. Thank you, Vicky. Like I told you, Vicky is I always tell him he's one of the best actors I've worked with. We all know that. But he's an amazing human being and he's a team player. And I think he looks at every scene like it's important. He's not trying to be the best. He's trying to make the scene the best. And there are very few actors like you who do that. So thank you, Vicky. And this is our first with you. My little godchild, Sara. We all know, like in her Darshako style, she's quite funny. But I feel so proud that so many people have called and told me that you have such great comic timing. And also the fact that you can be quite a strict wife. So thank you very much. And I've had a beautiful journey with your father. And we've done some really good films together. And I'm very, very happy that the legacy continues. So thank you. I want to give a big shout out to my entire Maddock team. There's Sharda and Pooja who've actually made this film. She found the story and Pooja ran the film. And she's been with me for 20 years. She's been with me from college. And this victory is as much hers as mine. I'd like to thank my marketing team, Nikita, Sonali, Priyanka. The way they've positioned this film and made it our story, kudos to them. And they want to thank the photographers because y'all have put such beautiful pictures of Soumya and Kapil that people have wanted to watch the film. And thank you very much for that. Who else am I forgetting? Sachin, Jigar and Amitabh, without which this album would not be what it is. If you have music like that, to aur kya chahiye? And the entire crew. I have never thanked so many people in my life, but I'm just very, very grateful that Maddock can continue and make stories like this. So eternally grateful and thank you very much. क्या बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए और हमें इतना प्यार दिया तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा है ज़रा हट के देखा है और तो वो दिख रहा है सब जगह पे थैंक यू टू Vicky and Sara for actually putting soul in Soumya and Kapil. मतलब उनको जिंदा किया आपने स्क्रीन पे और वो दिख रहा है आप दोनों की जो केमिस्ट्री है आप दोनों की जो स्माइल है एक दूसरे के लिए या गुस्सा एक दूसरे के लिए वैसे लगता है कि मिडिल क्लास के हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं और वही वजह है कि इस फिल्म पे सब लोग बिलीव कर रहे हैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा दीनू सर को एक्चुअली क्योंकि 15 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि सर कॉपी रेडी हो जाएगी मैंने कहा हो जाएगी कितने दिन में मैंने कहा 10 दिन में 8 दिन में हो जाएगी मैंने कहा वो भी हो जाएगा एंड 15 दिन में फिल्म को रिलीज करना मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया फिल्म अच्छी बना सकते हैं मैं बना लेता हूँ वैसे बट उस अच्छी फिल्म को उसका जो ऑडियंस है
उन तक अच्छे से पहुंचाना एक टास्क है, जहाँ पे एंटायर इंडस्ट्री सोच रही थी अरे कौन सा 15 दिन में क्या होगा, अरे वो तो डेट मिल गई इसलिए कर रही है, अरे ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा होता है, सबके मुंह चुप हो गए। एंड सीरियसली थैंक यू सर फॉर दिस, बिकॉज आपने थिएटर्स के दरवाजे खुले कर दिए ऑडियंस के लिए। जहाँ पर लोग समझते थे कि सिर्फ बड़ा कैनवास चलेगा, ग्रैंड फिल्म चलेगी, वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी थिएटर में चल सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया। एंड सीरियसली इट्स अ बिग चेंज इन द इंडस्ट्री। मतलब आज भी सारे चुप है क्योंकि किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। बोल रहे हैं 1 पे 1 फ्री दिया इसलिए चल रहे। अरे भाई अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो 1 किलो पे आधा किलो फ्री है, कुत्ता लेगा क्या? नो सीरियसली सीरियसली नहीं लेगा। जब माल अच्छा हो तो फ्री नहीं भी दोगे तो भी लोग लेंगे, है ना। अच्छा पानी पीने के लिए लोग कुएं के पास आते हैं, लेकिन पानी में गंध हो तो कौन पिएगा? तो हमने फिल्म अच्छी बनाई और जिस तरह से दिनू सर ने इस फिल्म के लिए दरवाजे ओपन किए, जिस जिस दौर में हम लोग चल रहे थे, जो थिएटर्स की हालत थी, उस हालत को उन्होंने चेंज कर दिया। एंड सीरियसली सर, एक अच्छी फिल्म बनाना अलग बात है, बट एज अ प्रोड्यूसर उस अच्छी फिल्म को उसका जो हकदार ऑडियंस है उनके तक पहुंचाना अलग बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, नोबडी एल्स कैन डू इट इन द इंडस्ट्री, सीरियसली सीरियसली। एंड एंटायर मार्केटिंग टीम, शारदा, एवरीवन, मतलब 15 दिन डे नाइट आप लोगों ने जो काम किया है। मुझे तो कोई पोस्ट भेजता था तो मैं इंस्टा पे डालता नहीं था, इतना लेजी हूँ। वो सोनाली पीछे पड़ती थी, पोस्ट नहीं डाला, पोस्ट नहीं डाला, मैं डाल दूंगा। लेकिन आप लोग का डे नाइट के जो एफर्ट्स है, और सौम्या, कपिल, आप लोग जहाँ जहाँ जाके पानी पूरी क्या 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 खा रहे थे, भाई साहब कमाल। मतलब सीरियसली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, बट थैंक यू थैंक यू। सॉरी, ओ हाँ, माथा बहुत बहुत जगह। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से शुरू करूँ। दीनू सर का फ़ोन जब मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना, ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था। मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, was I imagining it or will it ever really happen again? और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट so thankful, so grateful to him for giving me this. Honestly, I think it's a debut again because it's been half a decade almost. I shouldn't age myself like this. Anyway, it's been a while. And really, thank you very, very much, sir. Thank you so much. Thank you to the media. Thank you to the audiences for accepting what we've given you. Thank you so much, Lakshman sir, for giving me Soumya. Thank you so much for making me understand where she comes from. Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything. Really, truly, thank you. And thank you, Kapil, for making Soumya come to life. And thank you, Vicky, for calming Sara down. You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that, but you are so humble, so gracious, and so giving. फ्रॉम, नहीं सच में यार, मतलब सही बोल रही हूँ यार, तेरी कॉफ़ी से लेकर तेरे एक्टिंग तक सब शेयर करते हो, विच इज़ आई थिंक ग्रेट. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. And again, thank you to the marketing team. Thank you to everyone. But mainly and mostly, thank you to the audiences. Thank you so much for accepting our film. मैं तो कभी नहीं मानती थी कि सिर्फ
बड़ी फिल्में चलती हैं, मुझे हमेशा से यही लगा था कि सच्ची फिल्में चलती हैं। तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया, उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच। यार ये 3 लंबे लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है। पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके ज़रिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे। और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जाम्पल है, ये तो ओटीटी पे आनी चाहिए थी। तो वो अब सिनेमा घर में चल रही है तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं। तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज़्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज़ ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है। एंड यू नो लाइक आई थिंक amongst all of us the most confident was Lakshman sir always because he kept saying सर मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी, ये हर इंसान इस देश में ये कनेक्ट करेगा। पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता पर कनेक्ट जरूर करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया। सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए। और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फ़ोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट ज़रूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही। वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट जरूर करेगी। और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहली मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट जरूर करेगी। और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है। तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब काफ़ी कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से। और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहें ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है। एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली, मैंने फ़ोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू say this today on this stage that I am so grateful to him because he had every logical reason to bring this on the OTT platform and he would have been completely correct in everybody's eyes, but he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time and sir दिल से thank you है। हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं, आपके सारे पैसे लगे हैं टू टेक दैट कॉल एंड जेन्युइनली। एंड मुझे पता है कि पिछले जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है, उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर ट्रेलर कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था। Dinu sir has been sitting in his office till 3 a.m. in the morning with his superb team at Maddock to kind of figure out कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज मौका दीजिए इस फिल्म को। बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर एंड थैंक यू सारा। मैं पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूँ। और 5 दिन प्रमोट करूंगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा। but she is one of the most purest souls I have ever interacted with. She is wonderful and ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है
बहुत जेन्युइनली जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो। ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है। सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट ऑलवेज। बट थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, थैंक यू। वैसे दिनेश साहब आपने बोला था कि माइक 1/2 होगा कि नहीं, वैसे माइक शायद नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक गेम है जो हमारी मीडिया और आप जुड़कर ये खेलेंगे, लेकिन विनिंग हमारी जो विनर्स होंगे वो आप ही चुनेंगे हमारे मीडिया मेंबर्स से। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एज वी हैव द चेयर्स जॉइनिंग अस अपन स्टेज, प्लीज बैठ जाइए। सूप 3/4 किया है। कॉलेज में जब जाते थे तो पूरी की पूरी टोली एक ही सूप पीती थी। तो वो 3/4 तक गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सूप अकेले पिया जाता है। मतलब लॉजिक ये था हमारा कि सूप 1/2 ही पिया जाता है। और 1/2 का बेस्ट क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या होता है कि 1/2 में एक से ज्यादा मिलता है। हाँ, That's करेक्ट true. है नहीं? That's true. That's true. Okay, तो गेम बहुत ही सिंपल है बेसिकली। प्रोड्यूसर वाला थॉट था। सो हम आपको ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देंगे, लेकिन अब जो अगले सवाल होंगे उसमें हमारी मीडिया भी जुड़ जाएंगी। वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस, तो हम चाहते हैं कि हम जो सवाल पूछे उसमें आप भी प्लीज़ हिस्सेदार बनिए और आप हमें बताइए कि ये आपने किया है, और किया है तो आपके साथ अगर ये इंस्टेंस हुआ है तो कैसे हुआ है। जैसे हम अभी भी डब्बा लेकर जाते हैं, आई एम श्योर हम भी कभी कभार लेकर आते हैं, तो घर पे डांट पड़ती है अगर डब्बा छोड़ दिया या बॉटल छोड़ दिया या डब्बा फिनिश नहीं किया, तो ऐसा होता है। कौन से जय 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 Yes, कौन है? जय कौन है? जय भाऊ सांगा। प्लीज जय। माइक दीजिए उनको। जय शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल। हाँ, तो डब्बा क्या है? लाता हूँ लाता हूँ। तो अभी डब्बा अगर नहीं खाली हो तो रिटर्न लेके आना पड़ता है, फिर गाली मिलती है और जो भी नहीं, बट भाभी जी क्या बोलती हैं? चिल्लाती है और शाम में वही खाना पड़ता है फिर कभी। प्लीज यू कैन ऑल्सो टेल अस इफ दिस इज हैपेंड कि आप डब्बा भूल गए और घर पे मम्मी चिल्ला रही है कि डब्बा कहाँ है, डब्बा लेकर आइए। स्कूल के वक्त एक्चुअली क्या होता था, डब्बा में एक ले जाती थी, लाती वापस 3 थी। तो हमेशा मतलब ये पूछा जाता था, जैसे आज भी जब हमें बताया गया कि ये गेम खेल रहे हैं, तो दीनू सर जो मुझे बचपन से जानते हैं, उन्होंने मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट्स अगर हम बांटेंगे ना, उनको तुम चुरा के घर नहीं चली जाओगी। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। आई एम वर्किंग। सारा का एक प्रॉब्लम है, अगर वो खाना खा रही है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। मतलब 4 डब्बे होंगे, अकेला खाएगी, करेक्ट कि नहीं? सर मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ। नहीं क्या, सर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ऐसी ऐसा चीज बिल्कुल देगी कि सही आप नहीं है। कभी वापस नहीं मांगोगे, जो चारों चीज में सबसे अच्छा, वैसे हमारे सारे सवालों के लिए एक एक प्राइज है यहाँ पर। जय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैन यू प्लीज हैंड ओवर गिफ्ट टू जय? ले जाऊं मैं? ये आपकी धर्मपत्नी को देना। हाँ जय, अभी आज टिफिन नहीं खाएगा तो चलेगा, साथ में ये भी। प्रेजेंट हो गया। जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो डब्बा बहुत बार हम लोग ऊपर रख देते थे बैग, तो भूल जाता था मैं कई बार ऐसा है। तो ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं भाई वहाँ कुछ नहीं रखना, अपने पास ही रखना है, तो आई कैन टेक इट बैक, तो वो इंसिडेंट्स हुए थे एक्चुअली। अच्छा, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सी ऐसी टैक्टिक है या तरीका है जिससे हम छोटे छोटे पैसे बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड से कभी कभार सिर्फ एक ही दिन पे फ्लाइट टिकट पे डिस्काउंट मिलता है, तो मैं उसी दिन का इंतजार करती हूँ टिकट करने के लिए। तो ऐसी कोई टैक्टिक्स है वो आप भी प्लीज़ हमें बताइए, एंड मीडिया मेंबर्स प्लीज़ आप भी बताइए कि पैसे बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। पहले वोडाफोन के सिम कार्ड पे 1+1 टिकट ऑफर चलता था। क्या INOX बात में। है, वोडाफोन से ही लिया हमने। हाँ, सो तभी ऐसा होता था कि आपको एक नंबर देना है वहाँ पे एंड वो SMS सेंड करना है, तो आपको वहाँ से टिकट का ऑफर आ जाता है। तो सेम ऐसा ही किया था कि मैंने रिडीम किया एंड फिर बाद में मैंने जाके टिकट खिड़की पे जाके बोला कि मेरे को टिकट चाहिए, पैसे दिए तो 1+1 टिकट मेरे को मिल गया। तो एक टिकट के पैसे मेरे बच गए थे उस वक्त। व्हाट आर द थिंग्स दैट हम करते हैं? मतलब मैंने ज़्यादा से ऐसा कुछ किया नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, जब
पैसे बचाने होते तो मिस कॉल देने का सामने वाला अपने आप कॉल करेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे होता था ना इनकमिंग का और आउटगोइंग का अलग अलग लगता था, तो खाली मिस कॉल देके छोड़ देने का, नहीं किया वापस करने का वो करता ही था। तो मेरे ख्याल से हम सब करते थे वो, है ना। मैंने मिस कॉल नहीं दिया, लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार। और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है। मैं एक दिन के लिए अबू धाबी जा हाँ रही वहाँ थी। पे अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट कर रही है, सारा कहाँ है, सारा कहाँ है, सारा कहाँ है। दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है। सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. और ये क्या फिर करती है? विकी बोल रहा है, नहीं नहीं, उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना। इसका पूरे आईफा में यही चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो, हॉटस्पॉट दो। I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. But that's a lot for one day. Yeah. Why will I get Yes, it? for- yes. So, yeah, that's true. Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले. We That's have not the way, dude. आई थिंक ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना। हाँ देखो कर रही है वो, Yes, करेक्ट। gifts. I like gifts. आई थिंक पैसे बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की, थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए। आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं। बाकी माय नेक्स्ट वाज कि डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे। fantastic. अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है, जल्दी से let's give the mic there. हेलो हेलो ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना, तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ। तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आ सकते हो, नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ करेक्ट सकते हो। करेक्ट करेक्ट, तो वो मैंने एक किया है, ये मैंने बहुत सीक्रेट है। तो तो दोनों अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो Yes, कल sir. भी काम आ जाती नहीं, है। वो कल आ 12 जाती है। 12 घंटा चलती नहीं है। नहीं 12 नहीं चलती है, नेक्स्ट डे चलती है, अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो तो। ये राज है तो आपके। मतलब टीसी से छुप के रहो। नहीं नहीं नॉट टीसी से, नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम का रिटर्न टिकट ले मत, तो आप देर दिन ट्रैवल, एक टिकट में देर दिन ट्रैवल कर सकते हो। क्या बात है। आई थिंक ही विंस। नहीं बट बॉम्बे के अंदर, हाँ बॉम्बे के अंदर। पता चला हम दिल्ली पहुंच गए। या यही तो लोकल टीसी थे। थे चुप के। थैंक यू। ये तो एकदम सोशल सर्विस वाला काम किया आपने। सीक्रेट। क्या बात है। Yes, and Dinesh we've picked the winner there. Congratulations Thank to you, sir. our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। Yes sir, yes sir. एक मेरा भी है। हाँ जी भाजी। आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 करो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन टिप 1 रुपए को देते थे आप। इतने ज्यादा पैसे वो को भी बचाने पिक्चर में से- ले लिया मैंने। 1 रुपए भी नहीं छोड़ा। 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था। हाँ, तब होश में नहीं था। दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। Okay, next I think हम सब ने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है होटल स्टेज में। I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट खोल दो। मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी, एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था। तो जब हम एयरपोर्ट पे थे, एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. And she's like, ऐसे कैसे हो सकता है? We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे, मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था। लेकिन एक्सेस लगेज फिर बहुत पे करना पड़ा। So I learned, no I didn't learn, but I should have learned not to do that again. अरे ये होटल तो अब फिर मैं भी कम समझने लेती वाली हूँ। बात है। होटल फिर भी समझने वाली बात है। हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलाना। वो पिलो वाली बात नहीं बोल सकते। अब तो आ रही है। अरे लाउंज से तकिया ले गई। एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है? वो वहां पे 10 मिनट सोई, ये तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर, अब वो तकिया चल रहा है साथ में। ये सवाल पूरा सारा के लिए था। Okay, हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं। I'm sure कि आप भी ऐसा yes. होटल से please. क्या बटा है? Yes, I think कि हिंदी से अच्छा साउंड कर रहा है। होटल से क्या बटा है? अरे पुलिस नहीं आ रही, टेंशन मत ले, आ गई ना तो तू पहले जाएगी। Yes. एक ही बार लिया था मैंने, वर्कआउट के लिए नैपकिन्स नहीं थे तो जो होटल से ले लिए थे। इसमें भी तेरे को कूल बनना था, वर्कआउट के लिए नैपकिंस। हाँ, नहीं कूल नहीं लिया, उसके लिए ही था। वो तो ठीक ही है। हाँ नैपकिन्स लिए थे। वर्कआउट के नैपकिंस तो बनते हैं यार। हाँ बस वही लिया था और कुछ नहीं। एक ही बार लिया था। Yes, we have this lady also right there जो बताना चाहते हैं. Yes, can we hand over the mic to her? Can you hear me? Yeah, we can.
Okay. The best jugaad for your international luncheon is your breakfast buffet. हाँ So your breakfast buffet with the, you know, the array of cheese, the yogurts, and all the fruits that you get. That's a good jugaad for your lunch and especially your meals, especially when you're traveling. Good For one. international Great, ones. good one, So good one. I used to do that, especially when you're in Europe. So that's a good one. मैम आपको पता है Sharda does यूरोप it on promotion in Bombay. She takes croissants. Don't lie, Sharda. मैम यूरोप में ना चीज फ्री मिलता है Exactly. मैं जब And पहली then- बार यूरोप गया था मुझे लगा नमक है क्योंकि नहीं, यहाँ तो but नमक ही फ्री आप- मिलता है फिर आपने मैंने कहा yogurt चीज try फ्री किया? कौन देता है यार Cheese है, you've got great array of yogurt, That's flavored true. yogurt, दैट्स ट्रू healthy भी. बुफे जिंदाबाद जरा ये ना अभी मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ शारदा ने मैंने उसको ऐसा बोला ना तो वहाँ से बोल रही तीनों को बोलो कोल्ड ड्रिंक का बताए तो मैं और एक हमारे इंडस्ट्री का एक्टर है वरुण धवन गए थे तो हम गए एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने तो उन्होंने हमको बॉटमलेस पेप्सी दिया मतलब कि जितना पीना है पियो तो हम दोनों खा रहे थे फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है तो उसने बोला हाँ हम लेके आए ऐसे 4 लोग ने पिया फिर क्या हुआ उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी तो मैंने बोला अरे इसमें कुछ गिर गया तो कैन यू चेंज द ग्लास एंड डाइट पेप्सी जैसे आप कप्पू की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं कल के कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं that was Lakshman sir Okay, yes. Anybody else would like to share? Please. Hi, this is Pooja Kashyap. Hello. So, Hi, ma'am. Hi. So I always carry like yogurts, juices from hotel's room, and also cashews. That's my favorite. yeah हाय 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 जब रूम सर्विस अगर ठीक से नहीं मिलती है तो मेरी वाइफ जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप मंगा के रख लेती है जब रूम सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो Hi here. Hi. I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like, you know, अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है बट इफ यू बाय